Hello, scholar. Hope this will find you in pink. Today, in the series of our session, I'm going to start the story, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. बच्चों, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये पहली बुक है जिसका नाम था माय नेम इज एरम। ओरिजिनली इट वाज पब्लिश्ड इन 1940 और ये जो बुक है इसमें कैलिफोर्निया के जैकन वैली के अर्मीनियम ट्राइब आदिवासी जो होते हैं उनकी स्टोरी है। बेसिकली दे बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। इसमें दो बच्चों की स्टोरी है, एक का नाम है एरम और एक का नाम है लेट मी टेल यू एंड मुराद। ठीक है। और समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज a story about two Armenian boys, you can say Aram and Murad, and their adventures with a white horse. Let's begin this story. One day back, there in a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Borat, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. इसमें जो है एक बच्चा जो मुराद कह रहा है कि मेरा जो भाई है मुराद, जिसको पूरी फैमिली में लोग थोड़ा क्रेजी समझते हैं, पिक्यूलियर काइंड ऑफ कैरेक्टर उसका दिखाया गया इस स्टोरी में, आगे आप पाएंगे। एक सुबह वो आता है मेरी खिड़की पर टैग करके मुझे हटा जगाता है और उसे लगता है कि जैसे आई वाज ड्रीमिंग। Adam, he said, I jumped out of the bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was a summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. Armenian is the language of that Armenian tribe. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to try. What he saw, जब वो खिड़की पे आता है तो देखता है कि उसका भाई मुराद एक व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। उसे लग रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है, पर उन्होंने कहा मुराद ने कि अगर तुम्हें यहाँ पे आना है, राइड करना है तो फटाफट करो, क्विक करो, जल्दी करो। आई नो माय कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. वो कह रहे हैं एरम की जो है मेरा भाई मुराद है, वो बहुत मस्त मौला आदमी, अपने आप में खुश होने वाला, खुश रहने वाला, लेकिन इस समय जो है उस पर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। In the first place, my earliest memories had been memories of course, and my first longings had been longing to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. Why he was not able to believe? वो क्यों नहीं विश्वास कर पा रहा था अपनी आंखों पर? क्योंकि उन लोगों का फर्स्ट लव तो था कि डू द हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना उनका बहुत ज़्यादा उनके डिज़ायर में था, उनकी लॉन्गिंग थी, माने विश थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था कि ये बहुत अच्छा तो है लेकिन वो उनके लिए बहुत ही आउट ऑफ रीच था, बिकॉज दे वर वेरी पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और ये पावर्टी ही है, ये गरीबी है जो मुझे विश्वास करने पे, अविश्वास करने पे मजबूर कर रही थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, हम पुअर थे, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रीकन। Every branch of the Gargulanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अभी उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, बीइंग सो पॉवर्टी स्ट्रिकन फेलो, हम लोग एक हॉर्स को अफोर्ड कर सकते हैं
और फिर उसको ये याद आ रहा था कि मुझे पता नहीं कि ये हम लोग इस पॉवर्टी से कब निकलेंगे, कब हम भरपेट खाना खा सकेंगे। लेकिन उनकी जो ट्राइब थी वो अब पूरे दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए फ़ेमस थी। उनको इस चीज़ पे अपने प्राउड था, गर्व था और ईमानदारी जो थी वो बिल्कुल उससे कम समझौता नहीं कर सकते थे। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है उन्हें पता था। और चोरी तो हरगिज़ नहीं कर सकते थे। Consequently, even though I couldn't see the horse, so magnificent even though I could smell it, so lovely even though I could hear it breathing, so exciting I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought, it must be have stolen, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और अभी तो एक वो सोचता है एरम कि मैं हॉर्स को देख सकता था, इतना मैग्निफिशेंट मतलब पावरफुल था, मैं उसको स्मेल कर सकता था, इट वाज सो लवली, मैं उसकी ब्रीदिंग को, उसकी सांसों को सुन सकता था, बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरा कजिन मुराद और मेरे साथ या मेरी फैमिली मेंबर के साथ वो अगर जग भी रहे हैं या सो रहे हैं, हॉर्स ऐसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि जो हमारा कज़िन मुराद है वो घोड़ा लेके आया है। आई कुड सी इट बट आई कुडन्ट बिलीव कि ही हैज़ बॉट। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था, विश्वास मैं कर ही नहीं सकता था ड्यू टू सिचुएशन कि वो खरीद के लाया होगा। और मुझे ये भी नहीं विश्वास था कि उसने चुराया होगा। सो चोरी करना ये मैं बिल्कुल भी मेरा दिमाग उसको रिसीव नहीं कर रहा था। नो मेंबर ऑफ द गार्गुलेनियन फैमिली कुड बी अ थीव। और हमारी गार्गुलेनियन फैमिली जो एक ऑनेस्टी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, प्रसिद्ध है, वो चोर तो नहीं हो सकती। आई स्टेयर्ड फर्स्ट at my cousin and then at the host. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said. If you want to ride, it was true then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. और मैंने मुराद से पूछा कि ये घोड़ा आपने कहाँ से चुराया, तो वो उसने कहा खिड़की से बाहर कूद कर आओ अगर तुम्हें राइड करनी है, घुड़सवारी करनी है। इसका मतलब है उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इट मीन्स उसने घोड़े को कहीं से कहीं से चुराया है और मुझे ऑफर कर रहा है अगर मुझे घुड़सवारी करनी है तो मैं आऊँ। वेल इट seems to me stealing a horse for a ride was not a same thing as stealing something else such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. I wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब वो अपने अपना जो भाई है अरम एरम, उसके जो भी उसकी डीड है स्टोलिंग सॉरी स्टीलिंग की, तो वो उसको कंसील कर रहा है। वो कह रहा है कि घोड़े को चुराना इट्स नॉट स्टीलिंग, बिकॉज ये तब तक स्टीलिंग नहीं है जब तक कि मैं कोई पैसा नहीं चुराता हूँ या घोड़े को पैसे के लिए बेच नहीं देता हूँ। बट राइट के लिए घोड़े को ले लेना इट्स नॉट स्टीलिंग। वो अपनी बात को, अपने मेंटेलिटी को जस्टिफाई कर रहा था। आई नो वी वुड नेवर डू, और कह रहा है हम चोरी तो कभी नहीं कर सकते। लेट मी पुट ऑन सम क्लोज ही, आई सेड ऑल राइट, ही सेड बट hurry, I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और फिर मैं कूद के आ गया खिड़की से अपने कपड़े पहनकर और पीछे बैठ गया घोड़े पे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyard orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse begins to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और फिर वो बैठ गया और हवा से बातें करने लगा। वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिसीज और उनकी कंट्री साइड की जो रोड थी, वो 3 मिनट में वो क्रॉस करके ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। और फिर घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, लवली एंड न्यू, बिकॉज इट वाज अर्ली मॉर्निंग एंड इट वाज वंडरफुल। और कज़न जो उनका मुराद था, वो क्रेज़ीएस्ट मेंबर जाना जाता था फैमिली का, उसने गाना शुरू किया और एरम को लग रहा था कि मुराद वाज़ रोअरिंग, दहाड़ रहा है।
Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant mani Uttaradhikari of the crazy streak of a tribe. Before him was our uncle Khosrau, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Jackins Valley. A man of furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm, pay no attention to it. और वो बोलता था कि हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी या सनकी टाइप के व्यक्ति पिक्यूलियर करेक्टर के होते हैं उसी तरह उन्हीं में से एक थे हमारे अंकल खुसराव जो कि बहुत ही सनकी थे और वो बहुत ही ह्यूज थे उनके सर पे काले काले बाल थे और बहुत ही लार्ज बड़ी बड़ी मुस्टैच थी उनकी मतलब मूछें थी और वो बहुत ही फ्यूरियस माने गुस्से वाले थे इरिटेबल थे हमेशा चिड़चिड़े रहते थे और बिल्कुल अधीर इम्पेशेंट और किसी को अपने आगे बात ही नहीं करने देते थे अगर कुछ बोलने की कोशिश करता था तो उनकी एक सेइंग थी इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट कोई बात नहीं है और ध्यान मत दो that was all no matter what anybody happened to be talking about once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and wrote it's no harm pay no attention to it. The barber said but the boy says your house is on fire. So Khosrow wrote enough, it's no harm, I said. और वो इतनी ज़्यादा क्रेज़ी और गुस्से वाले थे कि एक दिन वो बार्बर शॉप में बैठे थे अपनी मूछें ट्रिमिंग कराने के लिए, उनका बेटा एरिक दौड़ते हुए आता है और कहता है कि पापा हमारे घर में आग लग गई, तो उसको भी डाँट के चुप करा देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तो बिल्कुल ध्यान मत दो। तो बार-बार कहते हैं अरे लेकिन आपका बेटा है, आपके घर में आग लग गई, तो उसको भी वो शोर से शाउट करके कहते हैं बस बहुत हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नो हार्म। माय कज़िन मुराद वर कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन और जो कज़िन था मुराद उसको लोग सिर्फ़ उसी के टाइप का और उसी का उत्तराधिकारी मानते थे, बस उसी की तरह उसका कैरेक्टर था। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज़ ज़ोरैब, मुराद के फादर का नाम ज़ोरैब था, हू वाज़ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, दैट्स हाउ इट वाज़ इन आवर ट्राइब। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड not mean that he was also the father of his spirit. The distributions of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. फिर वो कह रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना जो फादर का जो सन होता है उसकी हैबिट भी उसी तरीके उसकी स्पिरिट माने उसकी जो आत्मा या हैबिट्स है उसी तरीके हो किसी भी तरीके से भी हो सकती हैं हमारे ट्राइब में ऐसा ही होता है हम और मेरा कज़िन मुराद जो है घुड़सवारी कर रहे थे मुराद गाने गा रहा था फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री हम लोग पुराने कंट्री साइड में थे वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग हमारे पड़ोसियों के हिसाब से ये वो वही जगह थी सच में जो उस पे हम बिलोंग करते थे जहाँ के हम रहने वाले थे वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग और घोड़े को पूरी तरीके से शक्ति से हम दौड़ा रहे थे जितना तेज वो दौड़ सकता था एट लास्ट माय कज़न मुरा सेड गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन well you let me ride alone I asked this is up to the horse my cousin said get down the horse will let me ride I said we shall see he said don't forget that I have a way with a horse well I said anyway you have with a horse I have also for the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and Magazine Murad kicked his heels into the horse and shouted with Wazir, run. The horse stood on his hind legs, snorted and burst into the fury of his speed. That was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later he returned dripping wet. और फिर अचानक से मेरे भाई ने मुराद ने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा और कहा कि मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ तो ये जो एरम था उसने कहा कि मुझे भी क्या तुम अकेले करने दोगे तो उसने बोला कि ये घोड़े पे डिपेंड करता है तो बोल रहा है कि तुम कर सकते हो मैं नहीं तो कहता है कि मुझे आता है घोड़े के साथ आई हैव अ वे मतलब मेरे साथ मेरी मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है तो कहता है कि अगर तुम्हारी है तो मेरी भी है तो बोलते हैं मैं तुम्हारी सेफ्टी पर्पज से कह रहा हूँ देखते हैं
और उसके बाद मुराद चला जाता है दूर और 5 मिनट में वापस आता है, ड्रिपिंग माने पूरा गीला हुआ होता है। द सन वाज़ कमिंग अप, नाउ इट्स माय टर्न टू राइड, आई सेड। माय कज़िन Murad got off the horse ride. He said, I leaped at the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. और इससे पहले जब ये गया था, उसका भाई मुराद गया था, तो उसने घोड़े को किक लगाई, एरम को नीचे उतार के, और अपने हिंड लेग मैंने आगे के पैर उठाकर घोड़ा हिनहिनाता है। और इट वाज़ द मोस्ट लवलीएस्ट साइट कि उसने कभी देखी हो, सबसे खूबसूरत प्यारा दृश्य था उसके लिए। और उसके बाद घोड़ा चल देता है और पूरी स्पीड के साथ। फिर वो कहता है, जब मुराद आ जाता है तो बोलता है कि मुझे भी करने दो, तो कहता है चलो जाओ, और मैं कूद के उस पे बैठ जाता था। लेकिन उसको बहुत डर लगता है क्योंकि वो घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं उसके बैठने के बाद। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़िन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। उन्होंने कहा कि इसके मसल में किक करो, तो मैं और मुझे सबके पूरी दुनिया के जाग जाने से पहले हमें इसको ले जाना है वापस। I kicked into the muscles of the horse once again. He reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation dish, the horse ran down the road to the vineyard of Decran Halabian, where it begins to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. और क्योंकि उसको घुड़सवारी तो आती नहीं थी, वो छोटा सा 7-9 साल का बच्चा था, और घोड़े ने उसको गिरा दिया और आगे बढ़ गया कूदते हुए वाइन उस पे वाइन ट्रीज पे। तो हॉर्स उसको गिराकर वो उसने दौड़ना जारी रखा और आगे बढ़ गया। माय कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शॉटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, I will be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. और उसने मुराद दौड़ता हुआ मेरे पास रोड की साइड में आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, घोड़े की चिंता है। मुझे घोड़े को किसी कीमत पे चाहिए। तुम उस साइड में जाओ, मैं इधर जाता हूँ, और अगर तुम्हें मिल जाए तो काइंडली बी काइंड, और मैं वहाँ पे रहूँगा, तुम चिंता मत करना। फिर वो आधे घंटे बाद वापस आता है, घोड़ा उसके साथ होता है। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन। उसने कहा ठीक है, बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया जग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे? वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हम या तो उसको ऊपर वापस ले जाएंगे या अगली सुबह तक के लिए उसको छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said, I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you be riding every morning? अब वो कहता है कि मुझे पता है वो उसको वापस तो नहीं ले जाएगा, एक पल के भी लिए नहीं, उसको कहीं छुपा देगा। तो कहता है कि कहाँ ले जाओगे? तो बोले, मुझे वो जगह पता है। फिर अचानक से वो पूछता है कि कब से तुमने कितने दिन पहले ये घोड़ा चुराया था? और उसको लगता है कि बहुत दिन से ही इसका घोड़ा इसके पास है और ये अकेले जाके मॉर्निंग में राइड करता है, और आज सुबह ही सिर्फ मुझे लेने आया था क्योंकि उसे पता था मुझे कितना शौक है घुड़सवारी का। लेकिन उल्टा वही उससे मुराद ही उससे आराम से क्वेश्चन करता है, कौन कहता है मैंने घोड़ा चुराया? तो फिर वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम कब से एवरी मॉर्निंग तुम राइडिंग कर रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग। उसने कहा, आज से तो नहीं कर रहा हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started writing this morning. उसने कहा कि नहीं, मैं सच तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ये देखता है कि हम लोग से कुछ पूछता है, तो हम दोनों कोई झूठे नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए तुम ये समझ लो कि हम दोनों आज सुबह से ही राइडिंग कर रहे हैं। ऑल राइट, आई सेड। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fadvezian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. Alfalfa is a type of grass. We began walking home. और फिर उन लोगों ने एक डेजर्टेड माने जो ऐसे ही
बैरन पड़ा हुआ वाइन यार्ड था, जो कभी फार्मर जिसका नाम वेजियन था, उसका प्राइड हुआ करता था, बहुत बढ़िया वाइन हुआ करते थे वाइन यार्ड। लेकिन अभी डिजर्टेड माने उजाड़ पड़ा हुआ, वहीं पे जाके बार्न माने जहाँ पे वो रखने की जगह होती है, स्टोर हाउस कह सकते हैं, वहां जाके घोड़े को छुपा दिया और वो लोग वापस चलते हुए घर आ गए। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely at first. It wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I asked. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. और अब दोनों लोग आपस में जाते हुए बातें कर रहे हैं हॉर्स के बारे में. Armenia was very curious to know how their understanding has been developed, how the Murad became a good rider. तो मुराद कहता है कि मैं बस ऐसे ही, क्योंकि मेरी घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ उन्हें. तो बोलता है कि ये कैसी अंडरस्टैंडिंग? तो बोलिए कि ईमानदारी भरी साधारण सी अंडरस्टैंडिंग. तो आराम कहता है कि मेरी भी शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग घोड़े के साथ हो जाएगी. फिर वो मुराद उससे कहता है, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी द 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी breakfast. That afternoon my uncle Khosrau came to the house for coffee and cigarette. He sat in a parlor. Parlor mane living room, drawing room, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Barrow, an Assyrian who, out of the loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, signing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." और फिर मैं घर गया, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाया. उस दोपहर में अंकल खुसरा हमारे घर आए, कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे, लिविंग रूम में बैठे हुए थे. अचानक से एक फिर उसके बाद एक विजिटर आया जिसका नाम था, एक किसान था, जॉन बैरो. वो असीरियन था. ये लोग अर्मीनियन थे और कैलिफोर्निया की ट्राइब है, आदिवासी लोग. और ये जो विजिटर आया जॉन बैरो, वो असीरियन था, जो अकेलेपन को दूर करने के लिए जिसने अर्मेनियन भाषा सीखी थी ताकि लोगों से इंटरेक्शन कर सके. और वो जब वो आया तो मेरी माँ ने उसको भी सिगरेट ऑफ़र करी और कॉफ़ी दी, तो वो पीने लगा. और बहुत दुःख होके, दुःख भरी जो साँस लेके, और कहता है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, अभी भी नहीं मिला है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ. अब क्या होता है, इतना सुनना ही था. माय अंकल खुसरा बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म. व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स? कहते हैं कि तुम घोड़े के ऊपर रो रहे हो, हमने इतना सब कुछ खो दिया है. हमारे फोर फादर्स जो इतने वेल्दी थे, सारा कुछ, हमारा घर चला गया, सब कुछ चला गया, तुम सिर्फ एक घोड़े के जाने से रो रहे हो. देयर इज नो हार्म. What that may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said, but what of my surrey? Surrey माने घोड़ा गाड़ी, जिसमें घोड़े को लगा के चलाते हैं. What good is to surrey without a horse? बिना घोड़े के घोड़े गाड़ी का ही क्या ही काम है. Pay no attention to it, my uncle Khosrau roared. I walked 10 miles to get here, John Barrow said. You have legs, my uncle Khosrau shouted. फिर वो कहता है कि बिल्कुल ध्यान मत दो, जैसे कि उनकी सेइंग थी, मैं कोई बात नहीं, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, एकदम ध्यान मत दो. तो कहता है मुझे 10 मील यहाँ पैदल चल के आना पड़ा. फिर अंकल खुसरो एकदम शाउट करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास पैर है, तुम आ गए. तो दैट इज द वे हाउ ही टॉक. My left leg pains, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrow rode the horse. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khosrow said. He got up and stagged out of the house, slamming the screen door, my mother explained. और फिर जॉन बैरो कहता है कि मेरा लेफ्ट लेग बहुत दर्द कर रहा है. तो कहता है ध्यान मत दो अंकल खुसरो. फिर कहते हैं ध्यान मत दो. फिर फार्मर कहता है जॉन बैरो कि मेरे जो घोड़ा था वो $60 का था. तो कहता है अंकल खुसरो, मैं थूकता हूँ पैसे पे. और उठ के गुस्से में स्लैमिंग द स्क्रीन, मतलब सामने के डोर को हिलता हुआ, जैसे गुस्से में कोई निकल गया दरवाजे को खोल के और दरवाज़ा हिलता रह गया, उसी की बात हो रही है. स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन माने सामने का दरवाज़ा. मेरी मदर ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि
He was a gentle heart. He has a gentle heart, she said. It's simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over my cousin's Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hard wings of a young robin which couldn't fly. He was talking to bird. What is it? He said. The farmer John Barrow. I said he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब एडम ने ये सारी बातें सुनती वो दौड़ा-दौड़ा उसकी माँ जो पहले तो अंकल खुसराओ के बिहेव की वज़ह से जो जॉन बैरो उसे कहती हैं कि ये इतना बड़ा जो आदमी है वो हार्ट का बहुत अच्छा है। लेकिन वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, उसको होम सिकनेस है और कोई बात नहीं है। बस अंकल जो जॉन बैरो फार्मर होते हैं कुछ नहीं कहते और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तभी वो जो है एरम है, वो सारी बातें सुन रहा होता है, तो वो दौड़ा-दौड़ा मुराद के पास जाता है, कहता है और देखता है कि पीच के ट्री के नीचे वो एक रॉबिन बर्ड है, उसके पंख को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पंख में चोट लगी है और वो चिड़िया से बातें भी कर रहा है। तो पूछता है, "क्या हुआ?" तो वो बोलता है कि जॉन बैरो हमारे घर आए थे, वो अपना जो है घोड़ा वापस चाहते हैं। तुम्हारे पास 1 महीने से वो घोड़ा है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख लूँगा तुम उसे वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Gargonian family to steal? The horse must go back to its true owner. When I said, in 6 months at the latest, he said. वो कहता है कि तुम्हें तो सीखने में एक साल लग जाएगा और ऐसा नहीं हो सकता तुम क्या चाहते हो कि हमारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो चोरी का इल्ज़ाम लेंगे वो चोर बन जाए उसको तो वापस ट्रू ओनर के पास जाना ही है तो पूछता है एरम मुराद से कब तो कहता है कम से कम 6 महीने बस he threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. वो ऐसे बात करते करते घोड़े वो बर्ड को छोड़ देता है वो बेचारी 2 बार गिरती है लेकिन तीसरी बार वो आराम से उड़ जाती है बहुत ऊपर और सीधे Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning, on the way to Fedvezian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to the town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Barrow, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. और फिर हम लोग एवरी मॉर्निंग हॉर्स को निकालते थे जब हमारा टर्न होता था तो उसी तरीके से हॉर्स हमें गिराकर भाग जाता था पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी मुझे लगा एक ना एक दिन मुझे यह विश्वास था कि होप था कि मैं मुराद की तरह राइडिंग सीख जाऊंगा एक सुबह जब हम लोग जा रहे थे फेडविजियान के डिजर्टेड वाइन यार्ड से लेके घोड़े को तो मॉर्निंग में मुझे वही किसान जॉन बैरो मिला जिसका घोड़ा खोया हुआ था तो मैंने तो मुराद कहता है कि मुझे फार्मर से बात करने का बहुत अच्छा तरीका पता है, मुझे उनसे बात करने दो और वो जाके जॉन बैरो को कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। वो जो है वो बहुत ईगरली माने घोड़े को तभी अपनी चीज़ को सभी लोग पहचान जाते हैं, वो भी घोड़े को पहचान रहे थे। ध्यान से देख रहे थे एक्चुअली। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के बच्चों तुम्हें गुड मॉर्निंग और तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माय हार्ट माय कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन वो अर्मेनियन भाषा में कहता है कि इसका नाम है मेरा दिल A lovely name, John Burroughs said, for a lovely horse. I couldn't swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into its mouth? Of course, said Murad. Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse, tooth for tooth. He said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स जॉन बैरो घोड़े को देख के कहते हैं कि क्या ये घोड़ा अगर मैं बोल देता कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फैमिली को जो कि इतना ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है उसको ना जानता होता क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ तो मुराद बड़े कॉन्फिडेंट से कहता हाँ हाँ कुछ नहीं देख लीजिए तो वो हाथ डाल के देखता है तो कहता है दांत के ऊपर दांत है
मैं मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का ट्विन रहा होगा, नहीं जुड़वा भाई रहा होगा। और ये एक सस्पिशियस संदेह वाला जो व्यक्ति होता है, आँखों पे विश्वास करता है ना कि दिल पे, इंस्टेड ऑफ हर्ट, और फिर उनको गुड डे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। गुड डे जॉन बैरो, माय कज़िन मुराद सेड। अर्ली the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. और अगली अर्ली फॉलोइंग मॉर्निंग नेक्स्ट डे जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ कुत्ते कुत्ते थे, डॉग्स थे। तो मैंने अपने जो है कज़िन मुराद से विस्पर्ड मैंने टू स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत धीमे से फुसफुसा के कहा कुत्ते हैं, तो उसने सोचा कि ये भौंकेंगे, मैंने सोचा कि वो बार्क करेंगे। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. My cousin Morad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Barrow came to our house in Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think. I thank God my uncle Khosrow who was in the parlour, became irritated and shouted, Quiet man, quiet, your has been returned, pay no attention to it. और फिर मेरा भाई जो कज़न मुराद था, वो बोला कि कुत्ते हैं कोई बात नहीं, वो किसी और पे भौंकते होंगे, मुझे मेरे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ, वो नहीं भौंकेंगे। और फिर मैं और मेरे भाई माय कज़िन मुराद, उसने अपने घोड़े को पकड़ा, उसको प्रेस किया, उसकी नोज़ पे अपनी नोज़ प्रेस की, मतलब उसको दुलार किया, प्यार किया। एंड आफ्टरनून में दोपहर में जॉन बैरो आया अपनी घोड़े गाड़ी के साथ और मेरी माँ को बताया, उसने दिखाया कि देखो जो मेरा घोड़ा चुरा लिया गया था वो मुझे वापस मिल गया है। तो आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता क्या करे। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, बेटर टेम्पर टू, और पहले से ज़्यादा वो पावरफुल स्ट्रांग हो गया है और बहुत ज़्यादा उसका बिहेवियर चेंज हो गया, बेटर टेम्पर्ड हो गया, अच्छा हो गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और वो सारी बातें लिविंग रूम में बैठे उनके अंकल खुसराव सुन रहे थे, और वो ये सब भी सुन के बहुत इरिटेट हुए और शाउट करके कहते, चुप हो जाओ मैन, चुप हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा हॉर्स मिल गया है, अब तुम इस पे ध्यान मत दो। तो इट वाज़ द स्टोरी हैज़ बीन फिनिश्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो यू कैन आस्क मी, और इन द कमेंट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। एक्चुअली ये थीम जो है वो समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो इसमें जो हॉर्स है दैट सिंबलाइजेज द ऑनेस्टी, ऑनर एंड ट्रस्ट। ऑनेस्टी, द स्टोरी जो है पूरे दोनों भाई, आपने देखा पूरा जो स्टोरी पढ़ी वो सिर्फ दो भाइयों के बीच की है, अर्मेनियन है और मुराद और एरम, उन्हीं के बीच, और एक वाइट हॉर्स। बेसिकली तीन ही मेन कैरेक्टर्स आप इसमें स्टोरी में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको रीड करिए, समझिए। अगर कुछ डाउट्स हैं तो काइंडली डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छा लगा है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर with your family and friends. Thank you so much.